Let's start with my introduction. So I'm Yash Singhal. Uh, my native place is Rajasthan, but I've been born and brought up in Gujarat. And this year I've secured All India rank 37 in Indian Forest Service examination. So this was my fifth attempt at Indian Forest Service examination. So the journey has been long and tiring, to be honest. But nevertheless, as we say that all that ends well is good. So briefly, I would just share my strategy. Then I'll tell you about the different aspects of the examination, and in the end, I'll take the questions. Okay, so मेरी journey start with the 2016 May. I gave my first attempt in 2017, and thereafter I have continuously given the civil services attempt as well as the forest service ka examination. Uh, I've given five mains in all. I've appeared in one civil services interview in 2020, but I could not make the final cut. And this year, finally, I got selected in UPSC Indian Forest Service examination. Uh, while preparing itself, I was working with the coaching institutes, various coaching institutes such as Vision, Vajiram. I worked as a test evaluator as well as a mentor. And in 2023 itself, I got selected in the state services examination. I was working as a block development officer in state of Haryana. And simultaneously, I gave the attempt for the Indian Forest Service examination this last year, and I got selected this year. So this was briefly about my journey. Now I'll start with the different aspects of this examination. As you know that Indian Forest Service examination has three stages, just like the UPSC Civil Services examination. पहला stage prelims होता है. Thereafter you have a mains, and later on you have this interview. So तीन stages इसके होते हैं, और हर एक stage का एक different aim और aspect होता है. So which is somewhat different. So we'll start with the prelims. Okay, so prelims is the most difficult and the dreadful phase of this examination. Especially when it comes to the Indian Forest Service examination, यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज से 15 नंबर ज़्यादा ऊपर लाने हैं, ऑलमोस्ट 15 to 18 नंबर. इट वेरीज ईयर टू ईयर. जैसे आई थिंक लास्ट ईयर द कट ऑफ फॉर द सिविल सर्विसेज वाज अराउंड 75, एंड फॉर द फॉरेस्ट सर्विस इट वाज अराउंड 93. So आप देख सकते हो कि almost it is more than I think 17-18 marks than the civil services prelims examination. So यहाँ पर strategy और आपकी preparation थोड़ी सी और better चाहिए compared to the civil services. So this is the most important phase of the examination, because you see that almost somewhat like 2-3 lakh aspirants is appearing for the prelims examination, but only around 2000 people write mains. So यहाँ पर काफी ज़्यादा filtration हो जाता है. So prelims is most important. So let us discuss some different aspects of the prelims. So सबसे पहले book list आ जाती है कि आपको prelims के लिए कौन कौन सी books पढ़नी चाहिए. See, if you will Google, अगर आप Google, I think someone has written that I should also speak in Hindi. ठीक है, I'll keep it bilingual. Okay. तो बुक लिस्ट की बात करें तो बुक लिस्ट में आपको स्टैंडर्ड बुक्स आप देख लेंगे, तो कहीं पे भी आप कोई भी टॉपर्स टॉक देख लेंगे या कोई भी टेलीग्राम चैनल या गूगल भी कर लेंगे, तो एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है. If you want, I'll share in on my Telegram channel. I'll request the sir to add my Telegram channel in the description list. जहाँ पे मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर कर दूंगा. एनीवे मैं मोटी मोटी बुक लिस्ट अभी भी बता सकता हूँ. फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड आपकी बुक लिस्ट है, जैसे पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एंशियंट इंडिया के लिए आई फॉलोड आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटीज, मिडीवियल इंडिया के लिए मैंने न्यू एनसीईआरटीज फॉलो की थी. देयर आफ्टर इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए थे. उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुकलेट आती है, वो फॉलो की थी. और इसके अलावा आई थिंक yes, I think majority of the subjects that I've covered.
अगर किसी को कोई स्पेसिफिक बुक लिस्ट पूछनी है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल आंसर इट लेटर ऑन। ठीक है, तो सबसे पहली बुक लिस्ट बहुत अपने सोर्सेस है उसको एक बार आप लॉक कर दीजिए और फिर वो सोर्सेस पे यू शुड स्टिक। डोंट चेंज योर सोर्सेस वेरी फ्रीक्वेंटली, बिकॉज होता क्या है कि आपकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। जैसे आई स्टिल रिमेंबर कि लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट के चैप्टर में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, लेफ्ट में है राइट में, बिकॉज यू ओवर द इयर्स यू डेवलप अ फोटोग्राफिक और विजुअल मेमोरी, तो आपको भी ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आई वुड एडवाइस कि बुक लिस्ट अपनी ज़्यादा चेंज मत करना, जो भी आप कंफर्म करो। एग्जॉस्टिव बुक लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, और आप जब शुरू करें अपनी प्रिपरेशन, सो व्हाट यू शुड डू इज कि सबसे पहले एक या दो रीडिंग अपनी सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस के आप ले लो। ठीक है, एक एक बार दो बार आपने सोर्सेस पढ़ लिए, उसके बाद स्ट्रेट अवे गो टू द PYQs। PYQs देखिए कि PYQs में क्या थीम्स हैं। PYQs एक क्वेश्चन ये भी आता है PYQs को कैसे एनालाइज करें, उसमें मैं आता हूँ। उसमें आई थिंक देयर आर 3 स्टेजेस। तो सबसे पहले एक PYQ आप एनालाइज कर लें कि PYQs में क्या क्या पूछा है। फॉर एग्जांपल आपने मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ ली, दो बार पढ़ ली, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री के सारे पिछले एटलीस्ट 7-8 ईयर्स के PYQs देख लीजिए। PYQs देखने से क्या होता है, एक तो आपको थीम का आइडेंटिफिकेशन आ जाते हैं कि आई थिंक आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन द बुक लिस्ट। मैं अपनी बुक लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल आपने पढ़ लिया, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री के PYQs देख लीजिए, उसमें आप देखिए कि वो लोग क्या थीम्स पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द एक्ट्स, जो हमारे 1835 एक्ट है, सॉरी आई गेस 1935 एक्ट है, 1919 एक्ट है। तो इन एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट स्टेज PYQ का होता है कि आप थीम्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए, राइट। सेकेंड स्टेज आप PYQs में क्या करेंगे कि यू विल ट्राई टू स्टेप इन द शूज ऑफ द एग्जामिनर। आप क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि बस क्वेश्चंस पढ़ के आंसर सॉल्व करके एंड इट्स डन। इस तरीके से PYQ बहुत सरफेशियल लेवल पे एनालिसिस होती है। तो आप क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करिए, आप थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जो 3 ऑप्शन यूपीएससी ने गलत बनाए, ये क्यों बनाए हैं, ये किस तरीके से बनाए हैं, ये इन्होंने क्या सोच के ऑप्शंस बनाएंगे। थोड़ा सा जब आप एग्जामिनर के क्वेश्चन फ्रेमिंग माइंडसेट को जब एनालाइज करेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू बेटर एलिमिनेट दी ऑप्शंस। तो ये चीज आपका सेकेंड स्टेज होगा PYQ के एनालिसिस में। थर्ड स्टेज होगा जो कि आपको करना है, आई वुड कॉल इट एज ए गूगलिंग एस्पेक्ट। आपको क्या करना है कि आपका, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द PYQ एनालिसिस। सो द आई वुड रिपीट द PYQ एनालिसिस दोबारा से। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ PYQ एनालिसिस है कि आप PYQs को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार अपना टेक्स्ट रिवाइज करने के बाद उसमें थीम्स देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। कि मॉडर्न इंडिया में जैसे मैंने बताया था कि एक्ट से पूछे हुए हैं। पॉलिटी में आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी में आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से एक बार थीम्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। सेकेंड एस्पेक्ट आपका ये रहेगा कि यू वुड सी कि इस क्वेश्चंस में यूपीएससी ने गलत ऑप्शंस किस तरीके से फ्रेम किए हैं, या यही वाला क्वेश्चंस क्यों पूछा है। इसमें थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करना होगा आपको। इट विल टेक टाइम बट ग्रेजुअली यू विल सी कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थर्ड एस्पेक्ट इसमें आएगा विच आई टोल्ड यू वाज गूगल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द PYQ, स्पेशली ऑप्शंस हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गलत ऑप्शन से यूपीएससी फ्रेम द PYQ ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो उसको भी कर सकते हो आप गूगल, बट ये गूगल वाला एस्पेक्ट है, यू शुड कीप इट ऑन लेटर ऑन, जब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो गई हो। तो इस तरीके से आपको PYQ का एनालिसिस करना चाहिए। देर आफ्टर आपको टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस के बारे में आई वुड टेल। सी, टेस्ट सीरीज की मेजर 2 गोल होते हैं। वन इज टू गॉज योर प्रिपरेशन लेवल। आपको अपनी प्रिपरेशन देखनी है कि
मेरी प्रिपरेशन किस स्टेज पे है, तो वो टेस्ट सीरीज के मार्क्स से आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि ओके, अगर मेरे 200 में से लेट्स से यू आर गेटिंग 80 90 या 100, तो यू कैन से दैट योर प्रिपरेशन इज अबव एवरेज। तो फर्स्ट मोटिव ये होता है कि यू वुड सी योर प्रिपरेशन लेवल। सेकंड इज यू वांट टू आइडेंटिफाई योर एक्यूरेसी, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हो तो यू वांट टू सी कि कितने क्वेश्चंस पे आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमाइज हो रही है। ठीक है, फॉर समवन मे बी 80 क्वेश्चंस पे वो मैक्सिमम स्कोर कर रहा है, किसी के लिए 90 हो सकता है, किसी के लिए 95 हो सकता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और एक्यूरेसी आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट सीरीज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि टेस्ट सीरीज को ओवरडू मत करना। कई लोग ये भी करते हैं कि 100 150 टेस्ट दे देते हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। सो आई वुड से कि कीप योर टेस्ट लिमिटेड, फोकस मोर ऑन द रिविजन। क्योंकि आप चाहे 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो टेस्ट सीरीज से, बट यूपीएससी में वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं वो क्वेश्चंस। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लिमिटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो। और टेस्ट सीरीज सिर्फ सॉल्व मत करो। जब आपने एक टेस्ट लगाया तो उसमें सी कि व्हाट मिस्टेक्स आर यू मेकिंग, उसको नोट डाउन करो। और जब आप नेक्स्ट टेस्ट देने जाओ तो सी दोज मिस्टेक्स एंड ट्राई नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। तभी हमें उसका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट इट टेस्ट सीरीज। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो से द CSAT when you talk about the prelims, because CSAT these days it has become tricky. Although forest service के लिए most of the people would be having technical background, so they won't be having any problem with the aptitude as such. But still, these days CSAT is becoming tough. So I would say कि have a proper strategy in your mind. And when I tell you strategy, इट मीन्स जैसे CSAT में 2-3 सेक्शंस होते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है। सो आइडेंटिफाई कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। फर्स्ट, जैसे मुझे लगता था कि कॉम्प्रिहेंशन मेरे लिए ईजी है, तो आई वुड फर्स्ट सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले मैं 50 मिनट्स में आई वुड सॉल्व दी कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद का टाइम आई वुड सॉल्व मैथ्स एंड द रीजनिंग। सेकेंडली, डोंट गेट स्टक विथ वन क्वेश्चन। जनरली जैसे मेरा हालांकि मैथ्स बैकग्राउंड था, तो समटाइम आई वुड टेक थिंग्स ऑन ईगो कि यार ये क्वेश्चन इतना इजी है, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, सो डोंट गिव टू मच टाइम ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। 2-3 मिनट एट मैक्स दीजिए, एंड अगर नहीं बन रहा क्वेश्चन देन मूव ऑन। यू हैव 80 क्वेश्चंस टू सॉल्व, और आपको सिर्फ नेट 27 या 28 क्वेश्चन सही करने हैं। तो अगर आप अराउंड 40-45 क्वेश्चन एक्यूरेटली आंसर कर रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ, राइट। थर्डली, आप ये कर सकते हो कि थोड़े PYQs में CSAT में भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो मैथ्स के और रीजनिंग के जितने भी PYQs हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और उसमें जो आपको लग रहा है कि आपका इन क्वेश्चंस में कंफर्ट लेवल है, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दीजिए पहले। उन क्वेश्चन के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें यू विल हैव इनफ क्वेश्चंस टू आंसर। बट कई बार हम ये करते हैं कि पिक एंड चूज अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। सो डोंट चूज टफ क्वेश्चंस। आपको जो भी आपका कंफर्ट लेवल है उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके CSAT में आई थिंक इट शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और उसके बाद हम रिवीजन स्ट्रैटेजी में आ जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट, जो भी मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। आई वुड ऑलवेज डू एक्टिव रिविजन। आई वुड नेवर डू दी पैसिव रिविजन। जैसे मुझे कभी किताब लेकर सिर्फ पढ़ना पसंद नहीं था, तो आई वुड ऑलवेज कीप पेन इन माई हैंड। मैं हमेशा अपने पास कॉपी, किताब और पेन रखता था, और जो भी पढ़ता था तो मुझे जो भी की वर्ड से इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती थी, तो आई वुड जस्ट नोट इट डाउन या स्क्रिबल करता था, और एंड में मैं बस उसी को रिवाइज कर लेता था। कुछ कुछ चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए थे। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैंने क्रोनोलॉजी है, तो मैंने 1857 से 1947 की सारी क्रोनोलॉजी बनाई थी, क्योंकि काफ़ी बार यूपीएससी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से पॉलिटी में मैंने फंडामेंटल राइट्स के और DPSP के कुछ छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट्स के, जैसे एनवायरनमेंट में स्पीशीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी स्पीशीज का क्या IUCN स्टेटस है, क्या कौन सी स्पीशीज का क्या स्पेशलिटी है। तो इस तरीके से मैंने स्पीशीज पे बहुत सारे नोट्स बना लिए थे।
तो इस तरीके से आप जब PYQs को एनालाइज करेंगे तो विल सी कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम द सेम थीम, तो उसके अराउंड आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। एक और चीज़ मेरे को प्रीलिम्स में ऐड करनी है कि जनरली पीपल से कि आप बहुत ज़्यादा सोर्सेस को डाइवर्सिफाई ना करो, एंड इवन आई डू बिलीव दैट, बट कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए आप सोर्सेस डाइवर्सिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने देखा कि बुद्धिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं या विजयनगर एम्पायर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट इन सब टॉपिक्स को आप 2-3 जगह से पढ़ के एक जगह कंपाइल करके नोट्स बना सकते हो, बिकॉज इसमें रिटर्न्स ज़्यादा हैं। बट दिस शुड बी लिमिटेड टू ओनली फ्यू टॉपिक्स एंड नॉट ओवरऑल। ये नहीं हो सकता कि आप एंशिएंट इंडिया की 4 किताबें पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट आप हाँ, एंशिएंट इंडिया में अगर बुद्धिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप 2-3 जगह से पढ़ के उसको एक कंपाइल करके एक जगह आप नोट्स बना सकते हैं। प्रीलिम्स में PYQ एनालिसिस के लिए आई वुड टेल यू वन बुक विच आई फाउंड इट वेरी यूजफुल, इज दैट आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। दिस इज दिस बुक बाय IFS सौरभ कुमार। द नेम ऑफ द बुक इज प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड। ये यूनिक पब्लिकेशन की बुक है। आई वुड रिपीट द नेम ऑफ द बुक, प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड। मेरे को उस बुक से काफ़ी हेल्प मिली थी। उसमें सेक्शन वाइज PYQs के एनालिसिस दिया है, एंड दे ओनली उस बुक में ऑल्सो टिप्स और ट्रिक्स दी गई है कि आप कैसे अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आप कैसे उसको आंसर कर सकते हैं विद पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज हर टाइम वो एक्यूरेट नहीं होता, बट स्टिल ओवरऑल आई थिंक इट वॉज बेनिफिशियल फॉर मी। I think this is all about the from the prelims perspective. After that, I'll one more thing I want to add is the importance of the newspaper in the prelims. Overall, in general, आपको तीनों stages पे I think newspaper is equally important. But prelims में I can recall one instance, जैसे I think 2023 में yes there was one question. मतलब I was not familiar with that question, but I read the 4 options, और उस 4 ऑप्शंस में मुझे एक चीज़ पता थी कि ये वाला ऑप्शन बहुत न्यूज़ में रहा है, एंड देयर वर लाइक लॉट ऑफ इशू that was created around that particular option. I'm not able to recall the exact question, but there was something like that. So मैंने उस क्वेश्चन को I took a risk and I marked that question and ultimately it was correct. So see, newspaper helps you to build that intuition. अगर एग्जामिनर ने उस साल क्वेश्चन बनाया तो प्रोबेबली उस समय वो चीज़ न्यूज़ में रही होगी। So overall, I think newspaper one should try to read. After that, I'll come to the mains. So mains में Indian Forest Service में there are 4 papers overall. One is GK, another is we have this general English. Then we have 2 optionals. So each optional has 2 papers. So overall there are 6 papers. सो इसमें ऑप्शनल्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में। माय ऑप्शनल्स वेर जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। सी फॉरेस्ट्री में मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट कंसेस ऑप्शनल, and since I was aspiring for the Indian Forest Service examination, I had to read forestry later on. So this was the optional that can be prepared in 1.5 month at max. So मैंने around I think 1.5 month दिया हुआ इस optional को, and it was very short and sweet. So ये sorted था. Coming to the geology, it was mostly based on the pragmatism, because geology was performing well in the last few years. दूसरा इसके sources काफ़ी अच्छे से available थे, and third was that there was some overlapping of geology with the geography that we have read in GS1. Kind of comfortable with this subject. I took for both the optionals for the geology as well as the forestry. For geology, I took planet geology ka comprehensive course, and for the forestry, I took Hornbill ka coaching. So I took coaching. I read the notes of this institute, and और भी अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आता था तो I would Google it and I would read it from there. So ऑप्शनल जनरली आपको चूज करना हो तो आई वुड सजेस्ट दैट 2-3 चीज़ें आप देख लीजिए। वन इज दैट इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली अगर कुछ है किसी सब्जेक्ट में तो यू शुड डेफिनेटली गो विथ इट, बिकॉज ऑप्शनल्स को आप काफ़ी इन डेप्थ पढ़ते हैं,
तो इंटरेस्ट डज मैटर. आफ्टर दैट यू कैन सी कि इस optionals, I'll answer all the queries once I'm done with the strategy. फिर मैं सबके comments में जो भी questions हैं उन सबको answer करूंगा. Okay. बीच में answer करूंगा तो it will break the flow. That's why. Yeah. I'll answer each and every question, so don't worry. So yeah, I was saying that optional choose करते वक्त आपको 3-4 चीज़ें देखनी है. फर्स्ट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. सेकेंडली उस ऑप्शनल पर्टिकुलर ऑप्शनल के सोर्सेस अवेलेबल है या नहीं, उसमें मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है या नहीं, और हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग इन यूपीएससी. ठीक है, सिर्फ आप इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑप्शनल्स नहीं लेना चाहिए. दैट इज़ माय एडवाइस. नॉनदलेस व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आप पहले सिलेबस देख लीजिए. जैसे जनरली आप कंफ्यूज हुए तो एट मैक्स 2 या 3 ऑप्शनल्स में कंफ्यूज होंगे, तो आप उन ऑप्शनल्स का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए. उस ऑप्शनल का सिलेबस पढ़ के आफ्टर दैट यू कैन सी द PYQs कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, एंड देन यू कैन रीड फ्यू सेक्शंस ऑफ दैट ऑप्शनल टू गेट अ ब्रीफ आइडिया. थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा ऑप्शनल का क्या ओरिएंटेशन है. तो आप 1-2 ऑप्शनल के साथ इस तरीके से ट्राई करके एंड देन यू कैन चूज ऑप्शनल. इट इज यू कैन स्पेंड इनिशियली आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो ऑप्शनल में. Don't be in too much of hurry to choose optionals, because and once you have locked your optional there is no going back. ठीक है, तो ऑप्शनल्स आप बहुत ध्यान से चूज करिएगा. ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हो, थोड़ा बहुत उसके उस जो भी ऑप्शनल्स में आप कंफ्यूज हो उसमें थोड़ा बहुत आप पढ़ के देन यू कैन चूज योर ऑप्शनल्स. आफ्टर दैट आई वुड से दैट ऑप्शनल्स में आंसर राइटिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. एंड स्पेशली जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री जैसे ऑप्शनल्स में आई वुड से दैट डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आई रिमेंबर दैट फॉरेस्ट्री में आई थिंक ऑलमोस्ट हर आंसर में आई वुड हैव ड्रॉन द डायग्राम, ऑलमोस्ट ऑल आंसर्स. सो डायग्राम से क्या होता है कि एक तो आपके आंसर्स मुंडेन नहीं लगते, बिकॉज सी द एग्जामिनर डेली कितनी कॉपीज चेक कर रहा है, और सिर्फ रिटर्न चीज उसको पढ़ने में ही इज ऑल्सो ह्यूमन, सो लाइक ही माइट गेट बोर्ड. सो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है तो इट ब्रेक्स द मोनोटोनी. सो आई वुड सजेस्ट थोड़ा डायग्राम्स का आप यूज कर सकते हैं अपने ऑप्शनल्स के आंसर राइटिंग में एंड इन जनरल ऑल्सो. और ये डायग्राम्स आप सिर्फ देखकर एग्जाम्स में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट बिफोर हैंड. तो जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका डायग्राम्स ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस करिए एंड ट्राई टू इंटरनलाइज कि इसको मैं एग्जाम्स में आई ड्रॉ दिस डायग्राम और आई यूज दिस डायग्राम. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्शनल्स. आफ्टर दैट मूविंग टू द जनरल इंग्लिश. तो जनरल इंग्लिश में 3 सेक्शंस हैं. One is grammar, another is that's report and letter writing, and then there is essay. So the most important aspect is essay. Essay के 100 मार्क्स है. ठीक है, और इस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में कंटेंट से ज़्यादा essay में ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो कोशिश करिए कि पहले आप आधा पौना घंटा, आई विल नॉट से 45 मिनट्स, बट एटलीस्ट टेक 15, 20 और 25 मिनट्स टू ड्राफ्ट योर essay. पहले आप ड्राफ्ट कर लीजिए उस essay को कि आपका इंट्रो क्या होगा, फ्लो क्या होगा, आपका कंक्लूजन क्या होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक कंटेंट विद अ प्रॉपर सेंटेंसेस और कंसाइज वे में आप essay लिखोगे तो यू आर गुड टू गो, स्पेशली फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन. और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए, इससे आपकी मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. ठीक है, थोड़ा सा आप और जनरली मिसकंसेप्शन ये होते हैं ऐसे को लेकर कि आपको बहुत ज़्यादा शशि थरूर टाइप वोकेबुलरी यूज़ करनी होती है. ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश लिखनी है. ठीक है, एग्जामिनर को सिंपल तरीके से अपनी बात कहनी है, दैट्स ऑल. ठीक है, तो ऐसे में जस्ट टेक केयर ऑफ द ग्रामेटिकल मिस्टेक और अपना फ्लो अच्छा रखना. ठीक है, कंटेंट इज इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट द प्राइमरी थिंग.
और एसए में व्हाट यू कैन डू इज दैट, बिकॉज ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन है, तो जनरली एक ऐसे एनवायरनमेंट के राउंड आता ही है, एनवायरनमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स के राउंड, तो आप उस एसए को प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से ही। तो एनवायरनमेंट के जो भी डिफरेंट कोड्स है या एस्पेक्ट्स हैं, कोई बुक्स रेफरेंस है, वो थोड़ा सा कंटेंट आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, सो ओवरऑल इट विल हेल्प यू इन द एक्चुअल एग्जाम। Coming to the grammar section, grammar में what you can do is you can look at the PYQs of last 5-6 years, उन PYQs को solve कर लीजिए, और जहाँ जहाँ आपको issues आ रहे हैं कोई particular sections में, उन पे आप थोड़ा सा काम कर लीजिए। There are a lot of books for the grammar, ठीक है। मैंने कोई particular books refer नहीं की थी, so I would not be in a position to recommend you, ठीक है। But I'd solve the PYQs और मैंने थोड़ा सा Google कर लिया था, so just do that। और रिपोर्ट्स और लेटर के फॉर्मेट भी आपको इसमें मिल जाएंगे ऑनलाइन। सो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू वरी अलॉट, बट येस डू गिव इनफ टाइम, बिकॉज इसमें रिटर्न्स ज़्यादा है। आई थिंक इन आर बैच द हाइएस्ट मार्क इज अराउंड 185, सो विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। ऑप्शनल्स में या जीके में इतना स्कोर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट इंग्लिश में आप थोड़े से एफर्ट में भी इतना स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आप जीके की बात करूं, तो जीके में आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जीके में बहुत पर्टिकुलर सेक्शंस आते हैं, जैसे पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, तो इसमें स्टैटिक वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं ये लोग। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन रेफर दोज पर्टिकुलर स्टैटिक थीम्स जो आपने प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाए होंगे, या पहले आपने मेंस की प्रिपरेशन की होगी तो उसके लिए नोट्स बनाए होंगे, या फिर करंट अफेयर्स की कोई बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है जो न्यूज़ में रहे हैं, जैसे लाइक व्हेन आई गिव एग्जाम तब चंद्रयान 3 काफ़ी न्यूज़ में था, तो आई प्रिपेयर्ड दैट। तो इस ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, बट बहुत ज़्यादा जीके में टाइम नहीं देना है। जस्ट गिव आई थिंक 10 एट मैक्स 15-20 days to go through the standard compilation एक बार, see the identify the most important themes, और अपना स्टैटिक जो भी मटेरियल है, अपना पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, एंड डू इट इन द एंड, जब आपका मेंस आ रहा हो उसके कुछ टाइम पहले करना है, 1 महीने पहले। अभी दोज आर गिविंग मेंस, आई वुड नॉट रिकमेंड अभी आप जनरल जीके करो, अभी फोकस मोर ऑन दी ऑप्शनल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस। यस, एक और चीज मुझे मेंस में बतानी थी आंसर राइटिंग को लेकर। मेक श्योर दैट यू राइट योर आंसर्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, दैट उसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कीजिए। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि आपको डायग्राम्स और फ्लो चार्ट, मैप्स जितना भी यूज़ करते हैं करिए। जैसे मतलब कोशिश करिए जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप किस तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की क्वेश्चन है भक्ति मूवमेंट पे, तो rather than writing the different leaders of the भक्ति मूवमेंट, क्या अगर जी उसको एक मैप बना दीजिए, और उस मैप पे आप लोकेशन पे पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ओके, राजस्थान से मीराबाई थी, गुजरात से नरसिंह मेहता थे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इनोवेटिव वे से अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। Now, coming to the interview aspect, see the aim of the interview. If you see UPSC का syllabus, they say that it's not a test of your knowledge. आपका knowledge उन्होंने already prelims और mains में test कर लिया है. They want to see your personality, and there are different aspects of the personality, कि आप communicate कैसे करते हो, आप humble हो या नहीं हो, ठीक है, आप अपनी बात को कैसे रखते हो। So what you can do is that इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेंस की बात नहीं होती, इट इज़ अ लाइक साइमल्टेनियसली आपकी प्रिपरेशन चलती है। तो आप जब भी कोई न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ते हो, तो ट्राई टू थिंक लाइक इन ब्यूरोक्रेट, कि अगर मैं इस पोजीशन पे होता तो क्या होता। फॉर एग्जांपल मेरे इंटरव्यू में दे गेव मी वन सिचुएशनल क्वेश्चन कि लेट्स से इफ यू आर मे इफ यू हैव टू, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ भुज विच इज़ एन अर्थक्वेक प्रोन रीजन, तो अगर आपको अर्थक्वेक रेजिडेंट सिटी बनानी तो व्हाट स्टेप्स विल यू टेक। सो ये सब चीज़ें उस समय पे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ड्यू टू द प्रेशर। तो आप कोशिश करिए जब भी आप अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी समय आप सोचते रहिए कि अगर आप उस सिचुएशन में होते हैं, अगर कि रायट्स हो रहे हैं तो आप क्या करते हैं, व्हाट वुड बी योर स्टेप्स। तो तभी से आप ये सब चीज़ें सोचना शुरू कर सकते हैं।
सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आपका डैफ जो होगा, डीएफ जो आपको मेंस के बाद भरना होगा, उसमें उसका बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अपनी सिटी को, अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, आपकी हॉबीज़ हो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाउएवर कंटेंट इसमें लीस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑल दे वांट टू चेक इज़ दैट आपकी सूटेबिलिटी है या नहीं इस सर्विस में, आप ट्रेनेबल हो या नहीं हो, आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड मत अपीयर होना, ठीक है? और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर्स को पुट करना। अगर आपको आंसर्स नहीं भी आते हैं तो यू कैन पोलाइटली से दैट सर और मैम आई रीड मोर ऑन दिस, यू कैन से सॉरी टू देम। सो हैव अ बेसिक कर्टसी, ठीक है? इंटरव्यू में कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है? यू हैव बीन कॉल्ड to to look at your personality, so no big thing in the interview as such, ठीक है? और ऑल्सो वन थिंग दैट आई वुड से दैट बी ऑब्जर्वेंट। जब भी आप इन इन जनरल इन लाइफ बी ऑब्जर्वेंट। जैसे मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये पूछा था कि बिकॉज आई वाज वर्किंग इन हरियाणा, सो दे आस्क्ड मी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो वहाँ पे कौन-कौन से ट्रीज़ हैं, व्हाट इज़ द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ दैट एरिया। तो ये सब चीज़ें आप किताबों से नहीं पढ़ सकते। आप जब बाहर जाते हो तो यू हैव टू बी मोर ऑब्जर्वेंट। सो दैट इज़ माय टिप्स फॉर द इंटरव्यू। I'll take the questions now और उसके बाद फिर I'll end. Okay, I think I've already spoken for 35 minutes. So yeah, just let me know your questions now. So one question is that what are the aspirants that do make mistakes in the exam hall? सी एग्ज़ाम हॉल में मिस्टेक्स ये होती है कि जनरली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में। सो मेंस में ये मिस्टेक होती है कि आप कभी-कभार क्वेश्चन की डिमांड को नहीं पढ़ते हैं वो। जैसे आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया है एंड व्हेन यू सी दैट टॉपिक तो आप वही लिखना शुरू कर देते हो जो आपको आता है, बट उन्होंने पूछा कुछ और होता है। प्रीलिम्स में बात करें तो प्रीलिम्स में बहुत बेसिक मिस्टेक्स हो जाती है। कई बार आप बबल गलत भर देते हो, ठीक है? कई बार आप जो आपको एलिमिनेट करना होता है बिकॉज़ आप काम नहीं रहते हो, तो आप गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हो या आप ओवरथिंक ज़्यादा कर लेते हो। तो जस्ट मेंटेन योर कंपोज़र, ठीक है? आप ये सोचिए कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी तैयारी कैसी भी थी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास जो भी 2-3 घंटे हैं, ट्राई टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। आपके पास ऑलवेज़ फोकस ऑन द कंट्रोलेबल, और कंट्रोलेबल यही कि आप उस समय बेस्ट काम एंड कंपोज़र लेके जो भी आप बेस्ट डिसीज़न ले सकते हो वो लें। और वो तभी ले सकते हो जब आप एक्सटर्नल चीज़ों को आप एग्ज़ाम हॉल में हटा देंगे। ठीक है? तो ये बहुत बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। अ, उसके अलावा सो आई हैव गॉट वन क्वेश्चन दैट करंट अफेयर्स के नोट्स आप कैसे बनाते थे? ओके। सी आई डिड नॉट प्रिपेयर पर्टिकुलर नोट्स फॉर द करंट अफेयर्स। मैंने स्टैंडर्ड विजन आईएएस की जो कंपाइलेशन थी मेंस 365 वो पढ़ी थी। मैंने उसी में हाइलाइट कर लिया था। और जैसे मैंने बताया कि मेरे को लगता था कि कोई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसी कंपाइलेशन में से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे सो दैट आई कैन रिवाइज इट इन द एंड। बट मैंने कोई अलग से करंट अफेयर्स के एज सच नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने कंपाइलेशन में से ही पढ़ी थी। दिस वन क्वेश्चन, मैप्स को कैसे याद करना चाहिए? मैप्स को आई थिंक प्रैक्टिस से ही याद होगा। मैप्स को कोई अलग तरीके से तो याद नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज़ दैट जैसे मैं ये करता था कि जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती थी, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मैपिंग के वीडियोज़ डालते थे। तो आई वुड सी दोज़ वीडियोज़ ड्यूरिंग द लंच एंड डिनर। तो टाइम भी सेव हो जाता था और रिटेंशन भी अच्छा होता था। एंड देयर इज़ नो अदर वे टू रिमेंबर द मैप्स। आपको मतलब मैप्स को प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है? और व्हेन यू टॉक अबाउट द मेन्स अगेन देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो मैप के हैं, जैसे मैंने भक्ति मूवमेंट का एग्जांपल दिया था, या ज्योग्राफी में काफ़ी एग्जॉस्टिवली मैप यूज़ होते हैं। वो आप एक चीज़ और कर सकते हो कि एक अलग से एक डायग्राम्स की एक बुक बना लो जिसमें आप सिर्फ मैप्स प्रैक्टिस किए हुए हो।
तो उसको दोबारा आप रिवाइज़ करके याद कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन है कि लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग? मेरी प्रिपरेशन आई थिंक it's more than I started in 2017. So yeah, it's been a long 7 years. I've been preparing since 7 years. तो 7 साल प्रिपरेशन चली। पेन को लेकर पूछा है कि विच पेन डू यू यूज? सो आई यूज्ड पायलट V7 की एक पेन आती है। वो थोड़ी सी मतलब डार्क होती है, बट आई थिंक मेरी स्पीड उससे काफ़ी सही रहती थी। यू कैन ऑल्सो यूज पायलट V5 और V7 इज जनरली रिकमेंडेड, सो आई यूज दैट दोज पेन्स। हाउ मेनी मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर द करंट अफेयर्स? सी करंट अफेयर्स जनरली आप मंथली मैगजीन रेफर कर रहे हो, तो आप डेली मंथ मतलब उस मंथ की मैगजीन एट द एंड ऑफ दैट मंथ आ जाती है, तो फिर आप 4-5 दिन में उसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप कंपाइलेशन यूज़ कर रहे हो जो कि प्रीलिम से पहले आती है या मेन से पहले आती है, तो यूजुअली एक सब्जेक्ट की कंपाइलेशन आपको 3-4 दिन लगेगी, तो ओवरऑल आप मान के चलिए कि 20-25 दिन आपको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन पढ़ने में लग जाएंगे। और अगर आप मंथली पढ़ रहे हो तो वो फिर आपकी हर मंथ कवर होती रहेगी। सो उसमें आपका 3-4 दिन लगेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कम्फर्ट, आपको किस तरीके से करना है। बेस्ट ऑप्शनल फॉर इंग्लिश मीडियम, मैंने ऑप्शनल के बारे में ये बताया था कि अगेन देयर इज़ नो बेस्ट ऑप्शनल एज़ सच, पर आपको जो लग रहा है कि आपका कंफर्ट जिस ऑप्शनल में है, या आपको लग रहा है कि ये वाले ऑप्शनल में आपके पास सोर्सेज़ ज़्यादा बेटर अवेलेबल है, या ये ऑप्शनल बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों में, तो आप उस ऑप्शनल को चूज़ कर सकते हैं। बट मेन थिंग आई वुड सजेस्ट कि आपका कंफर्ट जिसमें है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको वो ऑप्शनल बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़े या काफ़ी टाइम तक पढ़ना पड़े। तो आपका इंटरेस्ट इज़ द मोस्ट प्राइमरी थिंग, अपार्ट फ्रॉम इट एज़ आई मेंशन्ड सोर्सेज़ वगैरह और ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो देयर इज़ नो बेस्ट ऑप्शनल एज़ सच। Okay, so this very nice question someone has asked कि how can we focus on our own life and not get bothered by what our friends are doing? They are getting placements and are doing better. See, देखो relative comparison is but natural, ठीक है? आपके फ्रेंड्स अच्छी जगह प्लेस्ड हो रहे होंगे, वो विजिट कर रहे होंगे, वो ट्रैवल कर रहे होंगे, एंड यू आर सिटिंग इन द रूम एंड द लाइब्रेरी और आप पढ़ रहे हो, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, ऑल एस्पिरेंट्स गो थ्रू फेज, जो सिलेक्टेड हैं या नहीं भी हैं, दे ऑल हैव गॉन थ्रू दिस फेज, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सेप्टेड कि ठीक है, बहुत नेचुरल चीज़ है, देयर इज नो बिग थिंग अबाउट इट। सेकेंडली सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू योरसेल्फ हैव चोजन दिस पाथ, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए थे, अगर आपको नहीं प्रिपेयर करना था, तो देयर वाज नो वन स्टॉपिंग यू, राइट? तो एक्सेप्ट इट कि भाई आपने अगर ये चीज़ चूज़ की है व्हिच इज़ मोर टफ, तो यू विल हैव टू मेक अ सैक्रिफाइसेस। बट एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट्स आएँगे, तो देन यू विल रियलाइज़ दैट ऑल दोज़ सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। सेकेंडली, आई वुड से कि डोंट गेट स्ट्रेस्ड टू मच अबाउट दिस रिजल्ट्स या फिर एग्जामिनेशन को लेकर, बिकॉज इफ यू सी फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट विल ओनली स्पॉइल योर परफॉर्मेंस। अगर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हो, आप सो नहीं पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आपका प्रेजेंट तो एनी वे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एंड अगेन दैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स विच विल बिल्ड अ विशियस साइकिल। सो कीप इट इन अ वेरी सिंपल मैनर कि देखो अभी आपके हाथ में पढ़ाई करना, सो आई स्टडी, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहा है इट्स फाइन, आते हैं वेल एंड गुड। बिकॉज सी, आई वॉज अ पर्सन हु यूज्ड टू थिंक कि अगर नहीं होगा तो यार, लाइक माय लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग इट। ओके, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, and I used to build unnecessary pressure. And when I realized that, when I had a string of failures,
It did not, my life did not change dramatically from now that I have cleared the examination. ठीक है, आपके हैप्पीनेस लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट इट इज ऑलमोस्ट सेम. सो हैव अ गुड फ्रेंड्स अराउंड यू. ठीक है, जो प्रिपरेशन को समझते हैं, फैमिली से आप रेगुलरली कनेक्ट रहिए. ठीक है, टॉक टू देम, टेल, टॉक टू देम अबाउट योर इमोशंस. ठीक है, देयर इज नो यू नो जड़ी बूटी विच विल build your motivation level. You have to have the self belief कि नहीं, आज नहीं तो कल एग्जाम क्लियर होगा. एंड नहीं होता तब भी लाइक देयर इज नो एंड टू लाइफ, बहुत कुछ है करने को. सो आई वुड सजेस्ट कि यार just stop comparing to the life or to the life of the other people. And I was not on social media during the preparation, so I थोड़ा सा I preferred कि मैं कट आउट रहता था लोगों से. सो इफ यू कैन डू सो वेल एंड फाइन. आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा कट आउट भी रह सकते हो, आप अपनी स्टडीज पे फोकस करिए. ऑप्शनल और जीएस में टाइम मैनेजमेंट को लेकर पूछा है, तो सी मेजॉरिटी ऑफ माय टाइम वेंट इन प्रिपेयरिंग द ऑप्शनल्स because I had 5 months. As I said, I was working in the state services, so I got leave for 4 to 5 months. But I had to prepare both the optionals from the scratch. So I would say my 80% of my time went in preparing geology, 10% of my time went in preparing this forestry, and rest 5% for GK and English. So because geology is the subject which requires subsequent revisions, it is a very memorization based subject. So I had to give a lot of time to the geology. So that is how I divided my time. One question I've got is about the preparation of CSAT. See, CSAT, I would say कि एक तो identify your comfort areas. आप comprehension, maths और reasoning में identify any two comfort area. अगर आप comprehension और reasoning में comfort है, तो build your strength in those areas. PYQs देख लीजिए पिछले 7-8 साल के PYQs अच्छे से फॉलो करके, और जिस जिस एरियाज में आपको लग रही है कि यू कैन इम्प्रूव, वर्क ऑन दैट. आफ्टर दैट जो मैथ्स के पोर्शन है, उसमें आइडेंटिफाई कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन है विच आर कंफर्टेबल. अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कंफर्टेबल, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, काफी सारे ऐसे सेक्शन है विच आर इजी, तो उन सेक्शंस पे अपनी होल्ड बना लीजिए. और देयर इज नो पॉइंट इन चेजिंग द टफर क्वेश्चंस. हर एक साल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, तो उनको मत देखिए. जो इजी क्वेश्चन हैं आप उन पे टारगेट करके उनको कोशिश करिए कि उस पे आप अपनी होल्ड बना लें. और पीवाईक्यूज करके, एंड यू कैन फॉलो फ्यू टेस्ट सीरीज लगा के, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट. इसमें यू जस्ट हैव टू सॉल्व, एज आई सेड, 35-40 क्वेश्चंस एक्यूरेटली. ठीक है, आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, तो अलग से आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अलग से इसकी प्रिपरेशन कीजिए. See, I had not followed any particular resources for the CSAT. I just did PYQs. That's all. See, Mrunal को लेकर पूछा है, Win 21, Win 22, Win 23, which is best? See, you have to study the latest notes. जो भी, जैसे for example, if you're appearing for next year 2025 attempt, तो you study Win 24 की सीरीज. एक साल पहले का current affairs is more than enough. You don't have to read पुराना compilation. वन क्वेश्चन इज प्लान बी कब से रखना चाहिए? सी, lot of thing depends upon your own financial constraint, social context, economic context. But I would suggest कि ठीक है, 2-3 अटेम्प्ट्स आप अच्छे से दीजिए without getting bothered by external things. अगर 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद if things are not working out, then you can simultaneously look for plan B. There is no harm as such. Does handwriting matter in UPSC? सी, मेरी हैंडराइटिंग आई वुड से इतनी अच्छी नहीं थी. ठीक है, आई वुड नॉट से
इट डज नॉट मैटर कंप्लीटली, जस्ट मेक श्योर कि आप लेजिबली लिखें, बस इतना अच्छे से लिख दीजिए कि किसी को पढ़ने में दिक्कत ना हो। मतलब बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट इतना अच्छे से लिख लीजिए कि सामने वाला उसको बिना पेन के पढ़ पाए, दैट्स ऑल। हाउ मेनी रिविजन शुड बी डन? सी, रिविजन जितने करो उतने कम है, ठीक है? अगर प्रीलिम से पहले आइडियली अगर 2-3 रिविजन हो जाते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। सी रिविजन, आई विल टेल यू थोड़ा-सा ब्रीफली रिविजन की स्ट्रैटेजी। रिविजन आपको इस तरीके से नहीं करना है कि पूरी किताब 3-4 बार आपने पढ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स स्टार्ट विथ कि आपने लक्ष्मीकांत पहली बार पढ़ ली। नाउ इन द नेक्स्ट रिविजन व्हाट यू डू इज़, जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगे उसको हाइलाइट कर लीजिए, ठीक है? थर्ड रिविजन में आप सिर्फ हाइलाइटेड वर्जन पढ़िए। फोर्थ रिविजन में व्हाट यू कैन डू इज़ दैट उसमें से भी जो चीज़ आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं, बस उसी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए पहले से ही थर्ड रिविजन के दौरान ही, और फिर फोर्थ रिविजन में सिर्फ वो चीज़ें पढ़िए जो आप भूल जाते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने क्या किया था कि स्पेक्ट्रम बहुत बल्की है, उसको एंड में रिवाइज़ करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई हैड रिटन डाउन द पेज नंबर्स कि मेरे को पेज नंबर 25 पढ़ना है, पेज नंबर 26, पेज नंबर 47, इस तरीके से देन मेरे सक्सेसिव रिविजन में सिर्फ वो पेज नंबर्स पे वो चीज़ सिर्फ पढ़ता था। ओनली देन यू कैन इफेक्टिवली रिवाइज। अगर आप पूरी किताब एंड टू एंड अगर दोबारा से पढ़ना चाहेंगे तो यू विल ऑलवेज फील शॉर्ट ऑफ टाइम। तो आप इफेक्टिव रिवीजन के लिए आप फिल्टरेशन करिए, हर एक सक्सेसिव रिवीजन में आपका टाइम कम लगना चाहिए, और वो इसी तरीके से होगा बाय हाईलाइटिंग, आइडेंटिफाइंग द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और थिंग्स विच यू कैन फॉरगेट, और उसका पेज नंबर्स वगैरह आप लिख सकते हो। See, I've done, someone has asked my background. I've done BSc mathematics. So I have a mathematics background. So how to improve my English? See, as I said that अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सी माय इंग्लिश वाज आल्सो नॉट वेरी गुड, एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मी एंड माय फ्रेंड वी हैड मेक वन नोट्स जहाँ पे हम है ना न्यूज़पेपर से हम वोकैबुलरी लिखते थे। सो आई स्टिल हैव दैट नोटबुक विथ मी। सो आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें थोड़ा-सा देख लीजिए किस तरीके से आप सेंटेंसेस उन्होंने फॉर्म किए, कौन-कौन से वोकैबुलरी आप यूज़ की है। तो थोड़ा-सा फॉर्मल टच आ जाएगा। ओवर द टाइम हो जाएगा, और ये इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी कॉम्पिटेंट इनफ कि आप अपनी बात को बहुत ही सिंपल वे में रख पाते हो, ठीक है? तो बहुत फ्लावरी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक लेवल की इंग्लिश जिसमें आप अपनी बात को कम शब्दों में अगर आप लिख पाते हो, तो इट्स मोर देन इनफ। ओके, सो समवन हैज़ रिटन दैट लाइक रिविज़न करने में एंड आगे पढ़ने के बीच में बैलेंस नहीं हो पाता है। सी दैट्स व्हाट यू हैव टू स्पेस योर स्टडी। जैसे कई बार ये होता है कि लाइक यू गेट स्टक विद सम सब्जेक्ट, तो उसमें इफेक्टिवनेस नहीं आती। फॉर एग्जांपल, आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो कई बार वो खींचता ही चला जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन रीड साइमल्टेनियसली 2-3 सब्जेक्ट्स। जैसे मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता था, तो आई यूज्ड टू कीप 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ, कि सुबह मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, दोपहर में इकोनॉमी, शाम को एनवायरनमेंट पढ़ लिया। तो इसी तरीके से मैं अपना रिविजन भी इसी तरीके से स्पेस करता था कि लेट्स से मैं पहला रीडिंग अगर मॉडर्न हिस्ट्री का ले रहा हूँ, तो हो सकता है मैं उस समय इकोनॉमी का रिवीजन करता था, तो आई वुड नॉट फील बोर्ड। और रिवीजन को भी आप इस तरीके से स्पेस कर सकते हो कि जैसे आज आपने सुबह कुछ पढ़ा, तो रात को एक बार सोने से पहले थोड़ा-सा एक बार उसको देख लिया, देन यू कैन सी द सेम थिंग आफ्टर 7 डेज़, देन 15 डेज़। इस तरीके से आप करोगे तो परमानेंट मेमोरी में बिल्ड हो जाएगा, देन यू विल बी एबल टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन।